Good morning, students. We will continue our next topic of the chapter. Why were temple destroyed? From where I am reading this particular portion, here is written targeted, and in your NCERT book you will get, I think, destroyed. So destroyed, targeted means वही कि आप टारगेट किए गए या डिस्ट्रक्शन में लाए गए, तो ये हम इसमें डिस्कस करेंगे. And yesterday we discussed about all how you can say the buildings or the temples or the worshipable place were constructed during the medieval period by the rulers, and what was the motive of them, and how they designed on the basis of divine look. So why were the temples targeted? Because kings built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attacked one another's kingdom, and they often targeted these buildings. तो लाइक वॉर की हम बात कर रहे हैं, बैटल की बात कर रहे हैं. जब कभी भी राजाओं में आपस में युद्ध होते थे तो सारी प्रॉपर्टी जो थी, जब वो विन करता था, विक्ट्री होती थी, इट वाज टेकन बाय द विनर. And in the early 9th century, when the Pandyan king Shri Mara or Shri Vallabhava invaded Sri Lanka and defeated the King Sena, the Buddhist monk and the chronicle Dhammakiti noted he removed all the valuables, like all the valuables means जो भी उसमें अच्छी चीज़ें होंगी, जो worshipable होंगे, like the statues of Buddha made entirely of gold in the jewel palace, and the golden images in the various monasteries, all these he seized. मतलब मंदिरों को लूटा गया, सारी प्रॉपर्टी. मंदिरों को तो उठा के नहीं ला सकते थे, लेकिन उनके अंदर जो भी होता था वो सब ले आते थे. The blow of the pride and the Sinhalese rulers had to be avenged, and the next Sinhalese ruler Sena second. अब Sinhalese क्या है? यहाँ पर जो लोग हैं, mainly one of the language spoken by the people that is called Sinhala. सिन्हाला लैंग्वेज है. तो इस लैंग्वेज को तो ये जो रूलर था फर्स्ट, दूसरे रूलर तक ने इस तरीके का रिवेंज लिया. एवेंज होता है एक तरीके से रिवेंज लेना. And the next Sinhalese ruler, Sena II, ordered his general to invade Madurai and the capital of the Pandyas. अब we know that in South India, आपका जो साउथ इंडिया है, यहाँ पर चेरास, पांड्यास, इस तरीके से रूलर्स थे. तो क्योंकि श्रीलंका इसके साथ में ही है, तो यहाँ से उसने उसमें अटैक किया होगा. तो पांड्यास एंड द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल नोटेड दैट द एक्सपीडिशन मेड अ स्पेशल एफर्ट टू फाइंड द रीस्टोर द गोल्डन स्टेचू ऑफ बुद्धा. तो ये भी कहा है कि उन्होंने अपनी सेनाओं को आदेश दिए और जो वो सब यहाँ से लूट कर लेके गए थे वापस उसको लेके आए. ठीक है, even the gold statues of Buddha, to restore them. Similarly, in the early 11th century, when the Chola king Rajendra I built Shiva temple in his capital, he filled it with prized statues seized from the defeated rulers, and in incomplete list of included ancient pedestal form of Chalukyas, a Ganesha statues and several statues of Durga, a Nandi statues from the eastern Chalukyas, an image of Bhairava, that is the form of Shiva. हम जानते हैं कि भैरव जो है वो शिवा का ही फॉर्म है. And Bhairavi from the Kalingas of Orissa, and the Kali statue from Palas of Bengal. तो मीन्स आप देख सकते हैं कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि outsider, the rulers who came from outside and invaded in India, they looted the temple. but इंडिया में अंदर ही अंदर भी ऐसा था कि एक राजा दूसरे राजा पर जब विजय होती थी तो वो मतलब विक्ट्री के बाद उन्होंने अपने देश में ही मंदिरों में लूटपाट मचाई. ठीक है, अपने किंगडम को भरने की कोशिश करी. सो व्हेन वी मूव टू दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड किया, आप दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत की तरफ तब बढ़ते हैं, तो वहाँ से हम देखते हैं सुल्तान
मोहम्मद ऑफ गजनी वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ राजेंद्र वन, ठीक है, 11th सेंचुरी की बात करें. ड्यूरिंग दिस कैंपेन इन द सब कॉन्टिनेंट ही अटैक द टेम्पल्स ऑफ डिफीटेड किंग एंड लूटेड द वेल्थ एंड आइडल्स. अब आप यहाँ पे मैंने एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो डाला है, यू कैन see that it is some original one. Expertise are telling about how many temples have been looted from Afghan to like Gujarat, ठीक है, उनकी आपको कैलकुलेशन मिलेगी पूरी, तो यू कैन सी देयर. तो यहाँ पर उसने क्या किया, सारे टेम्पल पे अटैक किया एंड आई लूटेड द वेल्थ एंड आइडल्स. जितने भी वेल्थ थी, ज्वेलरी थी और जितनी भी अच्छी मूर्तियाँ थी, सब ले गया, सब उसने लूटी. And Sultan Muhammad was not a very important ruler at that time, but he destroyed the temple, especially one of the Somnath. He tried to win credit as a great hero of Islam, और वो इसलिए किया क्योंकि उसको बहुत बड़ा क्रेडिट लेना था. He became the hero of Islam. In the political culture of Middle Ages, most rulers displayed their political might, military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers. यहाँ तक कि जो रूलर्स होते थे वो डिस्प्लेड करते थे देयर पॉलिटिकल माइंड, मतलब इस तरीके का काम करके जितना भी ज्वेलरी और जितना भी वेल्थ लेके आएंगे कि उससे क्या है, द मिलिट्री सक्सेस, और जितने पास भी उनके पास आर्मी होगी और वो जितने भी जगह को वो मतलब चाहे वो वर्शिपेबल भी हैं, ठीक है, जो डिफीटेड रूलर हैं तो उसमें उनकी अपनी एक सॉरी शान शौकत होती थी. In what ways do you think the policies of Rajendra I and Mohammad Ghazni were product of their times? ठीक है, अगर हम दोनों में ही कहें तो क्या डिफरेंस है, ठीक है, वो अब दोनों ही एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, वेदर द आउटसाइड और इनसाइड ऑफ द कंट्री. सो हाउ वर द एक्शन ऑफ टू रूलर्स डिफरेंट? तो कैसे डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब दोनों ही अपने किंगडम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं. सो इन दिस पर्टिकुलरली we can analyze the policies of the rulers, how they were fulfilling or flourishing their kingdom by attacking or invading the other rulers. So in the next term we will discuss like gardens, tombs and forts. तो अब यहाँ पर है इनके बनाने का क्या तरीका था, हाउ दे वर फेमस, गार्डन्स क्यों बनते थे, टॉम्स क्यों बने, फोर्ट्स क्यों बने. तो ये भी एक तरीके से क्या है, इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ पंप एंड शो. सो अंडर द मुगल आर्किटेक्चर्स बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स. बाबर, हुमायूं and Akbar, Jahangir and especially Shahjahan were personally interested in the लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर्स. ठीक है, जितने भी मतलब इनकी बात कहें या किसी भी रूलर की बात कहें, सो हर कोई अपने 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 मतलब किंगडम को, अपने एम्पायर को आगे बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें उसकी एक स्पेशलिटी हैं. सो बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्म ऑफ गार्डन. बाबर के लिए कहा जाता है कि उसका शौक था गार्डन मेंटेन करने का. Placed with rectangular walled and enclosures of divided into 4 quarters by the artificial channel. मतलब उसकी आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो वो रेक्टेंगुलर शेप की होगी और उसको 4 पार्ट में डिवाइड होगा जो कि वाटर के लिए था मेनली. एंड दीज गार्डन्स वर कॉल्ड द चार बाग, 4 गार्डन्स. ठीक है, चार बाग मतलब चार से मतलब यहाँ 4 से है, बाग का मतलब गार्डन है, यानी 4 गार्डन बिकॉज ऑफ देयर सिमेट्रिकल डिवीजन इनटू क्वार्टर्स. Beginning with Akbar, some of the most beautiful char bags were constructed by Jahangir and Shahjahan in Kashmir, Agra and Delhi. वहाँ पर भी ऐसे ही बनाए गए. There were several important architectural innovations. Innovations बोलते हैं नई नई चीज़ों को इजाद करना, नए नए तरीके लेके आना. During Akbar's reign, for inspiration, Akbar architects turned to the tombs of his Central Asian ancestor Timur. तो उन्होंने उस तर्ज पे बनाना शुरू किया जो कि मतलब सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन पार्ट्स में जिस तरह की कंस्ट्रक्शन चलती थी. एंड द सेंट्रल टावरिंग डोम, मतलब कोई भी डोम का जो मतलब एक सेंट्रल जो पार्ट बन रहा है किसी भी बिल्डिंग का, उसमें डोम लाइक स्ट्रक्चर देना. डोम लाइक स्ट्रक्चर ये वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. तो
and tall gateway, that is Pishtaks became important aspect of Mughal. तो उस टाइम पर ये एक नया तरीका था। तो आज इसको यहीं तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे अबाउट द टोम और आपका गार्डन एंड फोर्ट्स का। टिल द टाइम टेक द रीडिंग ऑफ दिस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।